میں اپنے اس نشست کے آخری مقرر جناب معروف عالم دین پیر شفاعت رسول صاحب کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا، لیکن کیونکہ ہماری محفل میں قبلہ علامہ محمد افضل حیدری صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ پیر شفاعت رسول کے بعد اختتامی کلمات اور دعا کے لیے تشریف لائیں گے۔ میں درخواست گزار ہوں پیر شفاعت رسول صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر الفاظ میں اپنے بیانات سے مستفید فرمائیں۔ ان کی آمد پر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی مرکز کی ملی، دینی اور اسلامی خدمات سے میں بڑے عرصے سے باخبر ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قومی مرکز اور انجمن حسینیہ جس پروگرام کو لے کر چلی ہے، اللہ اس میں انہیں دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے۔ اور دوسری بات کہ مرکز افکار اسلامی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج عید غدیر کے اس مقدس موقع پر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مہیا فرمایا، اور میں ان علماء کا شکر گزار ہوں جو ڈیلیگیشن کی صورت میں میرے مرکز آئے اور مجھے دعوت دی اور مجھے عزت بخشی۔ عید غدیر کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کچھ گہرائی میں جا کے جب سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ جی عید غدیر نہیں منانی چاہیے، مگر میں اہل سنت ہوں، اور صرف اہل سنت ہی نہیں، جو مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت میں ہمارا گزشتہ 70 سال میں بہت بڑا علمی، فکری، تعلیمی میدان میں ہمارے خاندان کا بڑا کردار ہے۔ عید غدیر کہ اس موقع پر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مولا علی کے فیصلوں پر کچھ اعتراض کیا تھا۔ تو جب یہ خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ناگوار گزری، اور آپ نے راستے میں رک کے منبر سجا کے مولا علی کو اور اپنے ساتھ اس منبر پر کھڑے ہو کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اعلان فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ میری کوئی طبیعت بھی ناساز ہے آج، ورنہ جو مجھے ذکر حسین کے محفلوں میں سنتے رہتے ہیں، کیونکہ میں بڑے مختصر پروگراموں میں جاتا رہتا ہوں، صرف اس لیے آپ لوگوں کے پروگراموں میں آتا ہوں کہ آپ کے پروگراموں میں مجھے اہل بیت کی محبت کی خوشبو آتی ہے، اور یہاں آ کر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں کسی اہل سنت کے اجتماع سے خطاب لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ اہل سنت پروگرام جب سنتے ہیں تو بڑے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، خاموش رہ کے، اور جو محبان اہل بیت کی محفل ہوتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ محبان محمد والے محمد بیٹھے ہیں۔ اب کچھ تھوڑا سا مجھے احساس ہوا ہے۔ میں یہ سمجھا تھا کہ شاید وقت زیادہ ہو گیا تو کھانا لیٹ ہو رہا ہے تو اس سے جسمانی طور پر نقاہت ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کی آواز تھوڑی سی سست ہے، لیکن ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ شیر جتنا بکھا ہوگا اتنا اچھا لڑتا ہے۔ آپ اہل بیت کے شیر ہیں، آپ کو یہ تھوڑا سا فاقہ جو ہے یہ اس نقاہت میں نہیں ڈال سکتا کہ آپ محمد اور آل محمد کے نام پر صلوات بلند نہ کریں۔ میں غدیر تشیع کی کتابوں سے نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ میں سنی ہوں
मैं अपने अकीदे की बात करूँगा। और जनरल साहब ने जिस तरह खुलफाए राशिदीन का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि ये इन्हीं का खूबी है और ये कोई जर्नल ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और अगर ऐसे 2-4 जर्नल हमें और मिल गए तो इंशाअल्लाह ताला शिया सुन्नी की ये झगड़े हैं बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं अहले सुन्नत के हवाले से ईद गदीर की बात करूँगा। मुझे इन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया है, लेकिन हमारे इस पाकिस्तान में एक अमीरुल मोमिनीन गुजरे थे, वो 90 दिन के लिए आए थे, तो कितना अर्सा गुजार गए। आप नाराज तो नहीं हो रहे मेरी इस बात पर? जनरल साहब से इजाज़त लेकर 90 दिन नहमदुहु व नसल्ली अलैहि पढ़ के 90 दिन के लिए बैठे थे, और कितने साल गुजार गए। तो अगर मैं 5 मिनट के लिए आया हूँ तो 15 मिनट गुजार जाऊँ तो कोई हर्ज तो नहीं है। और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम ईद गदीर को मुस्कुराहटों से मनाएं। तो मैं एक हदीस मैं अहले सुन्नत से, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और सहाबा किराम बैठे थे, मुझे जनरल साहब ने जुर्रत दी है कि मैं इस इज्तिमा में सहाबा का जिक्र कर सकता हूँ। ज़माना बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। हमने मिल के जंग लड़नी है अहले बैत की अजमत की और सहाबा की अजमत की। और यही पैगाम है ईरान के जय्यद उलमाए किराम का जो मुझ तक पहुंचा है, जो मैंने ईरान में जाके सुना है और उनसे गुफ्तगू की है मैंने। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जलवागर थे, बैठे थे, मेरे आका बैठे थे, सहाबा किराम बैठे थे, तो खजूरें खा रहे थे। क्या खा रहे थे? आप बोलते जाएंगे तो मैं जल्दी अपनी बात को पूरा करूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि जरा नजरें बचाकर कुछ गुठलियां खजूरों की मौला अली के सामने रखते जाना। तो सहाबा किराम 4 खजूरें अगर खाते तो उसमें 2 मौला अली के सामने रख देते, बाकी 2 अपने सामने। जब खजूरें खा के फारिग हुए तो मौला अली के सामने गुठलियों का ढेर था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अली ये क्या, तुमने खजूरें ज़्यादा खाई हैं? तो मौला अली ने कहा, हुजूर मैंने ज़्यादा तो नहीं खाई तो इनकी जितनी ही हैं खजूरें, लेकिन मैं खजूर खाता रहा, गुठली निकालता रहा, और ये खजूर खाते हुए गुठली समाज। आखिर मदीनतुल इल्म का बाप थे, तो फ़हम व फरासत, ज़कावत और जहानत आप पर ख़त्म थी। एक और मौके पर मौला अली खजूरें खा रहे थे तो आपको आशोब चशम था। अब जो इस बात पर नहीं मुस्कुराएगा मैं समझूंगा कि ये उधर से आया है। ईद गदीर है ना, हम इस पर भी इख्तिलाफ कर बैठेंगे कि हमने ईद गदीर मनाते। भाई नहीं, दौर नहीं रहा, आपके ऊपर कुफर की बड़ी सख्त यलगार है। मैं भी पाकिस्तान के हालात, मुल्क की हालात, इंटरनेशनल हालात को जानता हूँ। बड़े मुश्किल हालात हैं मुसलमानों पर, इकट्ठे होने का वक्त है। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खजूरें खा रहे थे, तो एक सहाबी ने कहा, हुजूर मौला अली की तो आशोब चशम है, खजूर तो मुफीद नहीं है। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन तेरे साथी क्या कह रहे हैं अली? वो कहते हैं आशोब चशम है, खजूर मुफीद नहीं है। तो मौला अली ने मुस्कुराते हुए अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूर मैं इस तरह से खा रहा हूं और आंख मेरी इसमें आशोब चशम है। गदीर हम मनाते हैं इस हवाले से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खून के मकाम पर मिंबर बनाकर खड़े होके मौला अली का हाथ में हाथ डाल के ऐलान फरमा दिया कि मेरे सहाबा, जो अली ने यमन में फैसला किया था वो ठीक था। तुमने अली के फैसले से इख्तिलाफ करके मेरे दिल को दुखाया है। सुनो, मैं कह रहा हूं कि जिसका मैं मौला हूं, अली उसका मौला हूं मैं।
किताब में। बस आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 15 मिनट कह के आपको थोड़ा सा सब्र में लाया कि भाई अभी टाइम काफ़ी है, लेकिन मैं बस आखिरी बात याद रखिए, मैं अफकार इस्लामिया के इन साथियों को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि जिन्होंने नहजुल बलागा से बेदारी और इसके साथ वाबस्तगी और इसके तारुफ के लिए एक तहरीक इन्होंने शुरू की है। मैं किताबें पढ़ने वाला आदमी हूँ और तकरीबन 30 साल हो गए मुझे किताबें पढ़ते हुए। मैंने नहजुल बलागा ज़रूर पढ़ी थी, लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने इस तहरीक को लॉन्च किया है, उसके बाद मैंने जब इसे पढ़ा और अपने मौजू को देखा तो यकीन जानिए मैं मुबालगा नहीं कर रहा और आपको खुश करने के लिए नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ जितने मौला अली अलैहिस्सलाम आपके लिए उतने ही हमारे हैं। ऐसे ही है या नहीं है? बल्कि मैं कुछ ज्यादा आपसे दावा कर सकता हूं, इसलिए कि मेरे एक बेटे का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है, तीसरे का नाम अली है। मेरी एक बेटी का नाम फातिमा, दूसरी का नाम बतूल, तीसरी का नाम मासूमा। मेरे मरकज में जो बागीचे हैं उनको मैंने मंसूब किया हुआ है बागीचा अहले बैत से। मेरे मरकज में आते हुए जब लोग दाखिल होते हैं तो उन्हें पहले 3 नाम, 12, 13, 14 बोर्ड हैं, उसमें पहले 3 नाम उन्हें लिखे हुए मिलते हैं। एक फातिमा तो ज़हरा, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन का। उसके बाद मरकज का दरवाज़ा खुल जाता है ताकि मरकज आने वाला ये नाम पढ़ के अगर उसमें हिम्मत हो तो आए, नहीं तो वापस चला जाए। मैं आप उस तरह दाद नहीं दे रहे जिस तरह देनी चाहिए आपको। मेरा ख्याल है आपके अंदर भी कुछ ऐसे मुफक्किर सकालर धीमी गुफ्तगू करने वाले पैदा हो गए, इसलिए आप लोग भी धीमे हो गए। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के नहजुल बलागा को मैंने बिल इस्तियाब पूरे शऊर के साथ गुज़श्ता 1 हफ्ते में पढ़ा और सारी किताबों का मुताला मैंने मौकूफ कर दिया। और यकीन जानिए मैंने अपने मौजू पर, क्योंकि अफ़्व दरगुज़र मेरा मौजू था नहजुल बलागा से, तो मैंने एक मकाम पढ़ा और मेरी रूह रक्स करती रही, वज्द करती रही कि या अल्लाह ये कैसा कलाम है। आपने फरमाया वक़ाल अलैहिस्सलामु इज़ा क़दरता अला अदुव्विका फजअलिल अफ़्वा अन्हु शुक्रन लिल क़ुदरति अलैहि। अल्लाहु अकबर। यकीन जानिए आपको अगर अरबी आई होती तो आप भी झूम जाते। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि जिसके पास ताकत हो, इक़्तिदार हो, हुकूमत हो, सतवत हो, हिम्मत हो कि वो बदला ले सके और फिर वो माफ कर दे, गोया उसका इस हालत में माफ करना उन नेमतों का शुक्राना है जो अल्लाह ने उसे अता फरमाई है। हम अपने अहले सुन्नत के इज्तिमाअत में ना उनको बेदार करने के लिए पता क्या कहते हैं, लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। हम तो आपके नारों को जिब बता के अपनी महफिलों में अपनी महफिलों को जिंदा करते हैं। अब ये आयत बस इसके बाद मैं इसी पर बात को ख़त्म करता हूँ। मुझे इस्लामी ज़ख़ीरा में 2 अली नज़र आते हैं। कितने अली? ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलिए। जो दस्तरखान के करीब है वो ज़रा और बुलंद आवाज़ से बोलें। कितने अली मिलते हैं? 2। एक अली वो जो ला मकानों में है और एक अली वो जो मकान में है। मैं नहीं कह रहा, कुरान ने खुद अल्लाह ताला को अली कहा है या नहीं कहा। मैं हाफिज कुरान हूं, अगर कोई मुझसे हवाला लेना चाहे तो मैं तकरीर के फौरन फारिग होने के बाद आपको हवाला दे सकता हूं। फरमाया कि अल्लाह अली है
उस लामकानों में बैठने वाले अली ने मेरे आका से कहा कि इस अली के जो मेरे घर पैदा हुआ है बच्चा, मैं लामकान वाला अली कह रहा हूं कि इस मकान वाले का नाम भी अली रख दो। ये 2 मिनट मेरी तकरीर से निकाल दें। आइए, उस अली ने भी जो हमें कलाम दिया वो भी बेमिसल बेमिसाल है। उसका नाम कुरान है और वो बवास्ता जिब्राइल मुस्तफ़ा तक पहुंचा। और जिस अली ने ये हमें कलाम दिया, ये कलाम भी खुदा का कलाम है। वहां वास्ता जिब्राइल था, यहां वास्ता मुस्तफ़ा है। और अगर मैं ये कह दूं कि उस कलाम अली के कुरान की अगर कोई तफसीर कामिल है तो वो अली मुर्तज़ा का नहजुल बलागा है। यार, हम लोगों के लिए ये जुमले कहना कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम तो मौलाना रूम की मसनवी को कहते हैं कि वो कुरान है। मौलाना रूम की मसनवी को कहने वाले कि ये कुरान है, उनके लिए नहजुल बलागा को कुरान की तफसीर, कुरान का बयान और कुरान की हकीकतों को आश्कारा करने वाला कहना, इसमें कोई हर्ज नहीं। खुदा के लिए मैं गुज़श्ता 20 साल से अहले बैत की मोहब्बत की बातें कर रहा हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं शिया तो नहीं बन सका लेकिन फातिमा का गदागर जरूर बन गया हूं। खुदा के लिए अहले बैत और उनके नामों को, उनकी खिदमात को मुतनाज़ ना बनाइए। मैंने हमफरे की किताब को पढ़ा आज से 20 साल पहले। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, आज कि नेट आपके पास है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसने 20 साल पहले उसने कहा कि कुफ्र सिर्फ 2 फिरके जानता है मसलक अहले सुन्नत में, अहले इस्लाम में, एक अहले सुन्नत और एक शिया, मगर वो डरता शिया से है। ये उसने लिखा। उससे किसी ने पूछा कि इनसे क्यों डरता है? उन्होंने कहा जी ये इतने सख्त जान है कि अपने आप को मारते हैं मुहर्रम में, तो अगर हम जैसे उनके सामने आएंगे तो हमें कहां छोड़ेंगे। ये 20 साल पहले मैंने हमफरी के राज की एक किताब, एक पंफलेट मैंने पढ़ा। मैं ये समझता हूं कि शिया सुन्नी एक लश्कर बनकर जब चलेंगे तो फिर आप हरावल दस्ता बन जाए, हम आपके पीछे हैं, हमें हरावल दस्ता बना दें, आप हमारे पीछे चलें। ये आगे और पीछे क़ियादत, शोहरत, दौलत, माल, इस सब की दौड़ से बाहर निकल के आज वक्त आया है कि हम अहले बैत अतहार की अजमत की जंग लड़ें। और याद रखिए, जब इमाम हुसैन शहीद हुए थे तो एक यजीद था। आज हमारी मसाजिद में बैठे हुए हमारे इमाम बारगाहों में भी, मैं इस जहर को इमाम बारगाहों में भी देख रहा हूं, हमारे इमाम बारगाहों में बैठे हुए मिंबरान पर 10 लोग हैं जो हुसैनी हैं, 90% हुसैनियत के लबादे में यजीद बैठे हैं। आप मेरे इन जुमलों को सिर्फ जुमला ना समझें। मैं गुज़श्ता दिनों जो एक लड़ाई चली, मैं उसमें अपने आप को मैंने किसी हद तक गैर जानिबदार रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने उस सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में बात करने वाले की मज़म्मत मैंने सोशल मीडिया पर की। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं कि हाकिम शाम
दिरहम और रियाल से लोगों के ज़मीरों को खरीदा करता था। आज भी हाकिम शहर के जो पैरोकार हैं वो मुसलमानों के मुबल्लिगीन के दाइयान के ज़मीरों को खरीद रहे हैं, और वो नारे जो हमने 70 साल तक इस मुल्क में नहीं सुने थे आज सुनने पड़ रहे हैं। और यकीनन उन नारों का मकसद मोहब्बत अहले बैत को लोगों के दिलों में काम करना है। अरे 14 सदियों कोई यजीद मोहब्बत अहले बैत को मुसलमानों के सीने से नहीं निकाल सकता। अगर लाखों यजीद भी सामने आ जाए तो हमारे सीनों से हमारा दिल तो निकाल सकते हैं, मोहब्बत अहले बैत नहीं निकाल सकते।